Okay, let's start with gross profit ratio. Yesterday I told you to do all the ratios except 6, 7, 9, 10 and 11. Okay, I will teach you that. But before that, whatever I told you to do, give me answers of those ratios. Now tell me what is gross profit ratio ka answer. 50%. Yes, see here 50% is your correct answer. Next was stock turnover ratio. What was your answer? What is your answer? 3 times, ma'am. Very good. 3 times is correct answer. Operating profit ratio means net profit before interest upon net sales into 100. So what is your answer? Yes, ma'am. 40%. 40%. Yes, correct. You can 40%. see and check it on check it from screen. It is visible. I Yes, hope ma'am. yes, Yes, ma'am. 40% is correct. Okay, next was current ratio. So what was the answer of current ratio? 2.67%. No, it is not percentage. It is 2.67 is to 1. There is a 2.67. mistake in data. 67. Okay, Yes. ma'am. 2.67 is to 1. Okay. It is not in the form of percentage. It is in the form of pure ratio. Okay. Tell me what is quick ratio. What is your answer? 4.17 4.17 or is to 1. Is to raised to 1. 1. 4.17. 160. 4.17 is to 1. Very good. Data's turnover ratio and creditor's turnover ratio. Now we will do it. And tell me about any other ratio. Did you calculate any other? Yeah, Proprietors proprietary ratio. Tell me the answer of that. 79.37%. Very good, very good. Good job. So your all answers are मैम correct. बट हाँ जी 79 कैसे आएगा मैम? 1 मिनट. 79 कैसे आएगा? क्योंकि मैम एक मिनट क्वेश्चन ओपन करिए ना आप. हाँ जी जस्ट वेट. हाँ ये है आपका क्वेश्चन. अभी देखो प्रोप्राइटरी मैम रेशियो एक की मिनट. फॉर्मूला क्या होती है पहले वो बताइए आप. शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100. हाँ मतलब ये बैलेंस शीट का रेशियो है. इसमें सब कुछ बैलेंस शीट में ही आपको मिल जाएगा. देखो शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है इक्विटी प्लस हाँ. प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. वो दिया हुआ है मिसलेनियस एसेट्स एक्सपेंस. में. हाँ. एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स मतलब होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर which is already given in the question. So what you have to do, equity plus reserve plus preference plus reserves less fictitious assets, you will get shareholder funds. Is it clear Atifa? यस मैम. So do it right away. Do it right away. 20 lakhs equity कैल्सी में अभी अभी कीजिए. प्लस प्रेफरेंस 20 lakhs plus reserves 11 lakhs minus fictitious assets means miscellaneous expenditure 1 lakh. So tell me your final answer for shareholder funds. 50,000. 50,000 नहीं होगा बेटा. 50 lakhs. 50 lakhs. 50 lakhs. हाँ 50 lakhs होगा. ठीक है ना. 40 ये 51. हाँ 51 माइनस 1 50 lakhs होता है. बराबर है. तो शेयर होल्डर फंड है आपका 50 lakhs. उसके बाद बोलता है डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स का डेफिनेशन होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स. 3 things. The total of 3 things makes total assets. The total of 3 things: fixed assets, long term investment, current assets. Do we find everything in balance sheet asset side? Yes मैम. Yes. So look Yes. at the asset side. Fixed assets 55 lakhs. In long term investments are not there. And what about current assets? Stock 8 175. Go lakhs. on adding. Debtors हाँ. 350, bills receivables 50, cash 225. Not fictitious assets, huh? Fictitious assets to it should not be added in total assets. Okay, up to cash. So what is your final 73. answer for total assets? 63. 63. What 63? What?
63 63 lakhs. lakhs. 63 lakhs. Okay. So 63 lakhs into 100. So 50 lakhs divided by 63 lakhs into 100. Your answer will be 79.6. 79.36. 37. हाँ वही 7. अभी समझा आतिफा? यस मैम. पक्का? यस मैम. ओके. Okay, so let us now do debtors turnover ratio and creditors turnover ratio. Okay, have you guys your books with yourself? You have your books? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Which is this sum? Sum number 3, no? 3. Okay. Okay. So what we are going to calculate? DTR. DTR. Now DTR formula is, see, net credit sales divided by, or you can use shortcut formula if they have also used that. Let me just check out. अच्छा, कलेक्शन पीरियड इन्होंने नहीं निकाला है, सेम फॉर्मूला यूज किया है मेरी जैसे. नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स. कलेक्शन पीरियड नहीं पूछा है तो वो छोड़ देने का, हम प्लेन फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमारी फॉर्मूला होती है, मतलब शॉर्टकट वाली फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. जब वो कलेक्शन पीरियड पूछेगा ना तब आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स. ठीक है, तो अब आपके सम में क्वेश्चन में देखिए नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है. क्वेश्चन में देख के बताइए क्रेडिट सेल्स कितनी है. देखो सेल्स कितनी है. 60%. हाँ, वेरी गुड, 60% of वेरी गुड, वेरी गुड शिवानी. 15 lakhs आपकी टोटल सेल्स है. ब्रैकेट पे लिखा हुआ है 40% कैश सेल्स, पर मुझे 15 lakhs नहीं लेना है क्योंकि उसमें कैश सेल्स इंक्लूड है. कैश सेल्स मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट हो चुकी है, तो डेटर्स तो होंगे ही नहीं ना. ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गई है मतलब वो मेरे डेटर्स नहीं है. डेटर्स कौन होते हैं? जो मुझे, जिनको मैं क्रेडिट पीरियड देती हूँ और जो मुझे later on in the future they are going to pay me. So those customers are known as debtors. तो डेटर्स में क्रेडिट सेल्स लेने का, अभी 40% कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 60%. तो 15 lakhs का 60% कितना होता है? 9 lakh. 9 Very lakh. 9 good. lakhs. तो आपको न्यूमरेटर में क्या लेना है? 9 lakh. 9 lakhs डिवाइडेड बाय Bills receivable. Because डेटर्स. debtor है पहले डेटर्स पहले डेटर्स कितने हैं वो बताइए. डेटर्स कितने हैं आपके? 3,50,000. 3 और lakh बिल्स 50,000. रिसीवेबल्स कितने हैं? 50,000. तो आप कैसे लिखेंगे? 3,50,000 प्लस 50,000. नाउ 9 lakhs whole divided by 4 lakhs. 4 lakh. 4 lakh. वेरी गुड. सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 9/4 इज 2.25. 2.25. क्या? जब भी हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं ना, Times.
तो पीछे टाइम्स लिखते हैं हम लोग, टर्नओवर में टाइम्स लिखते हैं हमेशा। टाइम्स है। अब अगर इसका कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो सपोज क्वेश्चन में पूछा है कलेक्शन पीरियड, देखो पूछा नहीं है पर मैं तो आपको करवा दूं ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कलेक्शन पीरियड अगर पूछा है तो कैसे फॉर्मूला लगती है कलेक्शन पीरियड की? कुछ नहीं बोला है ना तो मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं बोला है तो किस में कैलकुलेट करते हैं? मंथ्स में। और अगर बोलेगा कलेक्शन पीरियड इन डेज तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 365 अपॉन DTR। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 12 अपॉन DTR। और अगर वीक्स में पूछेगा तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 52 अपॉन DTR। 52 वेरी गुड 52 वेरी डिवाइड गुड। 80। 12 सॉरी 52 अपॉन DTR। DTR क्या होता है? डेटा डेटर्स टर्नओवर टर्नओवर रेशियो। रेशियो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का अभी मैंने आंसर कितना निकाला? 2.25। वेरी गुड 2.25 वेरी गुड। टाइम्स। तो आप फाइनल आंसर जैसे निकालते हो ना, मतलब कैसे निकालोगे? 12 अपॉन 2.25, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.333। 5 पॉइंट, फिर से बोलो। 5.333। 333 ओके। मतलब मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। 5.33। हाँ मंथ्स। पीछे अगर डेज में निकालोगे तो डेज, वीक्स में निकालोगे तो वीक्स, मंथ्स में निकालोगे तो मंथ्स। सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। ओके, so next formula is, our next formula is creditors turnover ratio। ठीक है, सारी फॉर्मूला सेम होती है इसकी, सिर्फ क्रेडिट सेल्स की जगह पे क्या आएगा बोलो? सारी फॉर्मूला सेम होती है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स की जगह पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज। परचेस। यस। और डिनोमिनेटर में डेटर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स। और और बिल्स बिल्स पेबल। रिसीवेबल्स की जगह पे क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेएबल। ठीक है ना, देखो कितना सिंपल है। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अभी नेट क्रेडिट परचेजेस ये आपको मिलेगा पीएनएल में। अच्छा, पीएनएल में उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 7,50,000। ओके, दिख रहा है आपको? कोई बताएगा मुझे नेट क्रेडिट परचेजेस कितना है? मेरे बताने से पहले कोई ट्राई करेगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या मैम, एक बार बोलो ना वापस। नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप में से कोई बताएगा मुझे बिफोर आई टेल यू? चलो ट्राई करो। कम ऑन क्विकली। कैश सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स। प्रतीक बेटा पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है ना कि इतनी क्रेडिट सेल्स है इतनी कैश सेल्स हैं, वो दिया ही नहीं है। और प्रतीक एक मिनट, कैश सेल्स क्यों लोगे आप? मैं परचेज की बात कर रही हूँ, परचेज। प्रतीक, हम कैश सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स क्यों करेंगे? मुझे परचेज के बारे में जानना है। मैम एक ट्राई करूँ मैं। सेल्स और सीओजीएस का जो डिफरेंस है ना बीच में, शायद वो परचेस। शिवानी, सेल्स और सीओजीएस का जो डिफरेंस होता है उसे जीपी कहते हैं, जीपी। सेल्स और सीओजीएस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ। और आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स के, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब सीओजीएस, सीओजीएस के अंदर होता है परचेजेस।
उसके बाहर हाँ। नहीं होता है, बाहर किसी चीज को माइनस नहीं करना है। सीओजीएस के अंदर ही ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड वगैरह वगैरह होता है। चलो अभी तो मैंने हिंट भी दे दी, कम ऑन। चलो बताओ, कम ऑन, ट्राई तो करो एटलीस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है टोटल? इधर 7,50,000। हाँ, मैम इधर तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ है सेल्स 3 में लाख। क्या क्या होता है? ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, ओपनिंग होता है, परचेज होता परचेस है, होता है, परचेज क्लोजिंग और होता भी है, बहुत गैरेज सारी चीजें इनवर्ड। होती है। हाँ, लेकिन वो दी हाँ हुई नहीं है। कैरेज इनवर्ड यस। नहीं हाँ दिया हुआ है, फ्रेट हाँ इनवर्ड नहीं दिया हुआ है, वेजेस नहीं दिया हाँ हुआ है। लेकिन और हाँ। क्या क्या दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स के? कौन क्लोजिंग से स्टॉक आई? है हाँ, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक एंड है। ओपनिंग। क्लोजिंग भी, वेरी गुड और वेरी गुड ओपनिंग दिया है, और बचा हुआ जो है वेरी गुड। तो परचेस आएगा बचा फिर। हुआ जो अमाउंट रहेगा वो परचेस परचेज परचेस आएगा। चलो, थैंक यू, एटलीस्ट थोड़ा तो दिमाग चलाया तुम लोगों ने। देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कहाँ है मैम? बैलेंस शीट में देखो, स्टॉक है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक ही तो बैलेंस हाँ शीट में एक ही स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। चलो, ओपनिंग दिया है मैम? हाँ बिल्कुल दिया है। पूरा क्वेश्चन रीड करो, पूरा क्वेश्चन रीड करो, मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक। 3,25,000। Very good. Besides the details mentioned above, the opening stock was rupees 3,25,000. ये तो दिया हुआ है। अब आप बोलोगे मैम जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ना दिया हो तो क्या करने का? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को परचेज समझ लेने का। ओके। अभी समझा? पर अभी दिया हुआ है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो, ठीक है ना? तो अब कौन सी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं नेट क्रेडिट परचेज की फॉर्मूला। नेट क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, तो नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करूं मैं नेट क्रेडिट परचेजेस? तो कैसे इसको ढूंढेंगे? देखो, क्लोजिंग। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे हम लिखते हैं ऐड परचेजेस, ऐड परचेजेस। उसके बाद मिलता है मुझे इन हैंड, उसमें से मैं लेस करती हूँ क्लोजिंग स्टॉक, जाके मुझे मिलता है सीओजीएस। वेट, देखो ये ना इसका फॉर्मेट होता है ढूंढने का। अगर आपको सीओजीएस ढूंढना है ना तो भी ऐसे ढूंढ सकते हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है तो भी यही फॉर्मेट से ढूंढ सकते हैं, अगर परचेसेस ढूंढना है तो भी इसी फॉर्मेट से ढूंढ सकते हैं। समझ आ रहा है? यस फॉर्मेट यस मैम। समझ आया मैम। ये? यस मैम। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 3,25,000। अच्छा, परचेज तो मुझे पता ही नहीं है। यही तो मुझे ढूंढना है। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड पता है आपको? इन हैंड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो आपको इन नहीं। हैंड भी नहीं पता, क्योंकि टोटल करने के लिए परचेज चाहिए, ओपनिंग स्टॉक के साथ नहीं है। तो चलो कोई नहीं, क्लोजिंग स्टॉक बता दो। यस 1,75,000। 1,75,000। 1,75,000, वेरी गुड। ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है। हाँ, 1,75,000, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, क्यों? क्योंकि हम इन हैंड में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, वैसे लेस भी ओपनिंग करेंगे। में से क्लोजिंग स्टॉक तो लेस ही होता है ना। तो हमको सीओजीएस मिला हुआ है क्या? यस मैम। हाँ, कितना मिला हुआ है? 7,50,000। 7,50,000, ठीक है ना? अभी 1,75,000 को वैसे तो लेस करते हैं, लेकिन उल्टा अभी चलने के ऐड टाइम पे करेंगे। क्या करेंगे? नीचे ऐड से ऊपर करेंगे। जा रहे तो ऐड करेंगे। ऐड नाइन बैक। लैख वेरी ट्वेंटी गुड, फाइव थाउजेंड वेरी गुड। चलो, 7,50,000 में 175 ऐड करके इन हैंड मिल सकता है, इन हैंड। 9,25,000। वेरी गुड। ऐड करने के बाद आपका आएगा 9,25,000। अब देखो इन हैंड का मतलब होता है टोटल, तो 9,25,000 इज टोटल, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक 325 है, तो परचेज कितना हो जाएगा?
6 lakh, 9 lakh 6 lakhs. 25,000 minus 3 lakh 25,000 which comes to 6 6 lakh. lakhs. वेरी गुड। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट फिनिश, मतलब जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर की साइन डाल सकते हो। क्लियर हुआ अभी? Yes, ma'am. बनाओ ये, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। पहले ये बना लीजिए। तो अब क्योंकि आपको क्रेडिट परचेज मिल गया, उसने देखो कुछ नहीं बोला है, हाँ ये इतनी कैश सेल्स, इतनी क्रेडिट परचेज होंगी, इतनी कैश परचेज होंगी, कुछ नहीं बोला है। तो मतलब पूरा का पूरा 6 लैक्स, पूरा का पूरा Credited. 6 लैक्स क्रेडिट परचेज होगा। पूरा का पूरा Yes. 6 लैक्स क्रेडिट परचेज होगा। अच्छा, क्रेडिटर्स कितने हैं बैलेंस शीट में चेक करके बताइए, क्रेडिटर्स कितने हैं? 1 lakh. ओके, बिल्स पेबल कितना है? 45. 1 lakh 45,000. 45,000. तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे 1 लाख और यहाँ पे लिखोगे 45,000। तो न्यूमरेटर में 6 लैक्स लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे? 1 lakh 1 lakh 45,000. 45,000. 1,45,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4.13. 4.13 टाइम्स। 4.13 टाइम्स। अब है ना कलेक्शन पीरियड नहीं, अब पेमेंट पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को मैं पेमेंट करती हूँ। क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं, डेटर से हम कलेक्ट करते हैं। तो डीटीआर में निकालते हैं कलेक्शन पीरियड और सीटीआर में निकालते हैं पेमेंट पीरियड। तो फॉर्मूला क्या होगी बोलो? 12 12 डिवाइडेड month बाय divided by CTR. सीटीआर। लेकिन अगर वीक्स में पूछेगा तो, 52 divided 52 by divided by और CTR. अगर CTR. डेज में पूछेगा तो 365 365 divided by divided by CTR. वेरी Divided by गुड। CTR. तो अभी आपका 12 डिवाइडेड बाय सीटीआर, सीटीआर इज 4.13 जो अभी अभी कैलकुलेट किया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2.90. पीछे 5 है ना बेटा, हाँ, जीरो के पीछे तो 5 है, तो जीरो 2.91. को 1 कर देंगे ना। या फिर 2.91 months. हाँ, ये नेट क्रेडिट परचेज मुझे मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको 6 लैक्स। ठीक है, ऐसे बनाने हैं आपको। देखो ये वर्किंग नोट है ना, तो इसको वर्किंग नोट जो होते हैं ना उनको स्टार मार्क की साइन दे देने का। जो जिसका भी नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं ना उनको स्टार मार्क की साइन देते हैं। अभी सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आंसर निकाला कि वेट करूं? Done. डन, ठीक है। चलो थर्ड। अब मुझे क्या निकालना है देखो। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारी 9, 10, 11, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ROCE, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू Into 100. 100। फॉर्मूला याद होगी ना आपको, आपने ऑलरेडी फॉर्मूलाज पढ़ी हुई हैं। EBIT, आपने किसी फॉर्मूला में EBIT निकाला था क्या? किसी फॉर्मूला में Yes. कहाँ निकाला था EBIT? Third one, operating profit ratio में. हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में EBIT आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कितना था? 6 lakh. 6 lakh. हाँ, बस वही आपका 6 लैक्स यहाँ पर सेम कॉपी करो और वो करेक्ट भी है। कैसे निकालते हैं EBIT? GP ग्रॉस प्रॉफिट आपको है, सम में देखो ग्रॉस प्रॉफिट 7,50,000, उसमें Gross ऐड profit करेंगे। plus operating income less operating expense. वेरी गुड। हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो लेस किया आपने, ठीक है? तो कितना आया आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद कितना आया? देखो एक मिनट रुको, पहले मुझे वेरीफाई करने दो। आपका जीपी है 7,50,000। 7,50,000 में से आपने ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, मतलब 2,50,000 को माइनस किया, तो 5 लैक्स आया। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। लेकिन मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
मतलब इंटरेस्ट भी लेस किया हुआ नहीं चाहिए, टैक्स भी लेस किया हुआ नहीं चाहिए, बिफोर चाहिए दोनों। लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स के बीच में ऐड एनओआई लेस एनओई भी तो होता है, वो करना पड़ेगा। ऐड एनओआई लेस एनओई ये सब में नहीं है ना, ये सब में नहीं है ना। तो आपका 6 लाख कैसे आ रहा है फिर? आप लोगों का ईबीआईटी 6 लाख कैसे आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैम, वो लेस किया है, एक्सक्लूड किया है। अच्छा हाँ बराबर, उन्होंने इंक्लूड कर दिया है ना। हाँ बराबर, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन लोग ने लेस डिबेंचर कर उन्होंने दिया। लेस कर दिया है, तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। हाँ बराबर। डिबेंचर्स कितने हैं? 10 लाख। नीचे देखो बैलेंस शीट में, कर्सर को मेरे देखो, डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख का 10% है इंटरेस्ट, 1 लाख। 1 लाख होगा जो ना। 1 लाख है ना, लेस हो गया है ना, उसको मुझे ऐड वो भी बैक ऐड करना पड़ेगा। करेंगे। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट। इन्होंने इंटरेस्ट लेस कर दिया है, तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 लाख। मतलब ये 6 लाख कैसे निकाला? अगर चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ। देखो मैं आपको चाहिए तो ईबीआईटी की पूरी फॉर्मूला सिखा सकती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स है ना ईबीआईटी रॉन्ग निकाल के आते हैं। ईबीआईटी कैसे निकालते हैं ना, ये देखो ईबीआईटी, ईबीआईटी इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले तो सबको पता है जीपी कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस से निकलता है जीपी। जीपी में ऐड करो, जीपी में ऐड करो ऑपरेटिंग इनकम्स और लेस करो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा इज इक्वल्स टू, मतलब आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, पर मुझे सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अर्निंग। अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप है ना वो वर्टिकल फॉर्मेट याद करो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के बाद हम लेस इंटरेस्ट करते थे, मुझे वो नहीं करना है, नहीं करना है। तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट के बाद हम क्या करते थे? ऐड एनओआई लेस एनओई, तो वो तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बिफोर टैक्स भी चाहिए ना मुझे, मुझे बिफोर टैक्स भी चाहिए, तो बीच में जो ऐड एनओआई और लेस एनओई है ना, वो भी करना पड़ेगा। ऐड एनओआई लेस एनओई, ये करेंगे ना तब जाके मिलेगा ईबीआईटी, सॉरी ईबीआईटी। ये एक्चुअल फॉर्मूला होती है, अगर किसी को चाहिए ना तो ये नोट कर लो आप फॉर्मूला, ये ईबीआईटी निकालने की एक्चुअल फॉर्मूला होती है, एक्चुअल फॉर्मूला। लेकिन अभी गड़बड़ क्या है, ईबीआईटी है ना, अभी मुझे जीपी मिला हुआ है, ये देखो अभी क्वेश्चन में मुझे जीपी मिला हुआ है, बताओ जीपी कितना है? जीपी कितना है क्वेश्चन में? देखो जीपी 7,50,000। 7,50,000, वेरी गुड, 7,50,000 मुझे जीपी मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ऐड ऑपरेटिंग इनकम्स है ही नहीं, देखो क्वेश्चन में है ही नहीं। हाँ, लेस नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, हाँ है, ऑफिस एंड हाँ। सेलिंग, तो मैं दोनों को पहले लेस कर दूंगी। दोनों का टोटल कितना है? 250। लेकिन देखो, 2,50,000। हाँ 250 में ना एक और चीज इंक्लूड हो गई है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इन्होंने ऑफिस के खर्चों में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को छुपा के रख दिए, मतलब माइनस कर दिया एक साथ। पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के बाद आता है, लेस इंटरेस्ट, जबकि वो यस। मुझे नहीं करना है। अगर मैंने लेस इंटरेस्ट कर दिया तो मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर नहीं आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगा वो, और मुझे आफ्टर इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। तो जो लेस हो गया ना उसे ऐड बैक कर दो, जो लेस हो गया है उसे ऐड बैक कर दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा ईबीआईटी का, ईबीआईटी। अभी आप बोलोगे मैम ईबीआईटी कैसे मिलेगा? अभी तो मैंने ऐड एनओआई लेस एनओई किया ही नहीं, क्योंकि सम में ही नहीं है ना, सम में नहीं है, नहीं तो मैं करती थी अभी भी। बोलो ईबीआईटी कितना हो जाएगा आपका? 6 लाख। आया समझ में? ये सबको आया? क्लियर है? यस मैम। आपको चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये 1 लाख क्या है,
ये 1 लाख है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये समझने के लिए कि 1 लाख क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है जो लेस हो चुका है, तो मुझे लेस नहीं चाहिए क्योंकि बिफोर चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, EBIT। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर फंड्स ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, जो मैंने अतीफा को क्लियर किया। हाँ तो yes शेयर होल्डर फंड्स आपने कितना निकाला था, इक्विटी प्लस, 50 लाख हाँ, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, तो प्लस आपने, मिसलेनियस हाँ, तो कितना निकाला था शेयर होल्डर फंड्स, 50 लाख। देखो 50 लैक्स प्लस, उसमें प्लस करना पड़ेगा, क्या प्लस करोगे, बोरोड फंड्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है प्रोप्राइटर फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। सब में देख के बताओ कितने बोरोड फंड्स है, बोरोड फंड्स मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कितने बोरोड फंड्स दिख रहे हैं, डिबेंचर एक ही है मैम। एक मैम ही है, वेरी डिबेंचर गुड, ही एक ही है। वेरी गुड। सो 10 lakhs के आपके डिबेंचर्स हो जाएंगे। अभी क्लियर हुआ फॉर्मूला, इनटू 100। तो अभी सॉल्व करने के लिए 6 lakhs को सेम लिखना पड़ेगा पहले ही, डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10 lakhs 60 lakhs। इनटू 100, आंसर कोई बताएगा,